Hello everyone, my name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful morning to start with today's current affair. And today I just want to say that if you want to move forward with UPSC or PCS or any examination, I just want to tell you that consistency is a key. Make sure that you are practicing regularly, make sure that you are revising your notes regularly, and make sure that you are seeing current affairs regularly. Because if you break your routine, then the efforts that you have put previously will be gone. So make sure that you are going with consistency. So with this thought, we'll basically move forward with today's news. Now, we are going to discuss India-U.S. trade will not include a sensitive agricultural items and dairy that is said by Goyal. Now, listen, when we talk about US trade deal, there are lots and lots of aspects that we have to cover in this. सब कुछ cover करने की कोशिश करेंगे and basically how this deal is seen, right? How this deal is seen by others also and अलग-अलग aspects क्या है that we are going to understand. Now, हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट ने हाई इंपोर्ट टैक्सेस जो है चार्ज करे थे, जिन्हें हम टैरिफ्स बोलते हैं, राइट, दैट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वर कमिंग फ्रॉम इंडिया, राइट, जो यहाँ से जा रहे थे टू यूएस से, वहां पे उन्होंने हाई टैरिफ्स बेसिकली इम्पोज करे, राइट. तो ओरिजिनली द यूएस पुट ऑन एक्स्ट्रा 25% टैरिफ्स ऑन गुड्स फॉर लाइक रेसिप्रोकल टैरिफ्स, ठीक है. अभी रेसिप्रोकल टैरिफ्स का है, सो दीज आर द रेसिप्रोकल टैरिफ्स, these are the tariffs, these are also called normal tariffs. मतलब दोनों ही कंट्रीज चार्ज करते हैं एक दूसरे पर, राइट. मतलब एक कंट्री अगर हाई इंपोर्ट टैक्सेस डाल रही है तो दूसरी कंट्री भी उसके बदले में हाई इंपोर्ट टैक्सेस डालेगी, राइट. सो दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल. नॉर्मल टैरिफ्स भी बोलते हैं. तो इतने किसने इंपोज करा था? 25% यहाँ पर इंपोज करा, राइट. सो इट्स अ स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ द ट्रेड पॉलिसी, ठीक है. अब इसके बाद में व्हेन इंडिया वाज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, राइट, उसके बदले में दे गिव पेनल्टी टैरिफ, सो 25%, ठीक है. तो 25% हमारे पास रेसिप्रोकल एंड अनदर 25% ओवरहेड, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पेनल्टी टैरिफ, ये क्या होता है? दिस इज लाइक अ पनिशमेंट टैरिफ, राइट. अब बेसिकली यूएस समवेयर वाज नॉट हैप्पी दैट इंडिया वाज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, राइट. सो फॉर दिस दे चार्ज्ड एंड दे पनिश्ड द कंट्री फॉर दिस एक्शन दैट दे वर इंपोर्टिंग, they were like taking oil from Russia, right. So India was buying oil from Russia, so they did not like for this. तो इसीलिए वहां पे 25% उन्होंने टैक्सेस लगा दिए, राइट. सो नाउ नॉर्मल टैरिफ हमारे पास 25% है, पेनल्टी टैरिफ हमारे पास 25% है. नाउ इट केम आउट टू बी 50% टैरिफ्स, राइट. तो अब क्या हो रही है बात? अब ये बात हो गई कि पेनल्टी टैरिफ जो है हटा दिया गया है. नाउ दिस 50% हैज बीन रिड्यूस्ड टू 18%, ठीक है. सो नाउ दिस इज द चेंज दैट हैज बीन सीन इन दिस डील. Coming to the next part of this news, basically Narendra Modi also, our Prime Minister also mentioned that these two countries, as they want to tie their relationship and take their relationship further, so for this they have like come to this solution, and the solution is that this 50% is now to 18%, ठीक है. ये solution दिया है and this is the tweet that Narendra Modi gave, ठीक है. Now coming to the next thing, अब देखो समझने की कोशिश करना, this is the back-end story that we have discussed, but in reality there are lots and lots of things that are going on and we have to, being a UPSC student, you have to cover each and everything, ठीक है. जीरो टैरिफ की भी बात करेंगे यहाँ पर, और बेसिकली एग्रीकल्चर में क्या क्या नुकसान हो सकता है, राइट. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है. अब देखो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं यूएस टैरिफ की, सो there is a policy that is door in the face, ठीक है. door in the face का मतलब होता है कि when you try to, you can say that when you try to manipulate someone, right. तो अब देखो there are lots of things that are changing. अब देखो क्या है डोर इन द फेस? इट्स लाइक अ नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी. पहले हमारे पास में इनिशियल नंबर कितना था? हमारे पास था 50%. डोर इन द फेस में क्या होता है? व्हेन यू प्रेजेंट लार्जर अमाउंट, राइट, जस्ट टू मेक द मेंटल प्रेशर, ठीक है. कि सपोज आप लोग सैलरी के लिए जा रहे हैं, राइट. अब वहां पे नेगोशिएशन की बात हो रही है. अब आपने बोला आई वांट 80,000, राइट. सो द मैनेजर, द एचआर सेड कि नहीं 80,000 तो बहुत ज्यादा है, विद योर क्रेडेंशियल्स एंड विद योर कैपेबिलिटीज विल गिव यू ओनली 60,000, राइट. तो उन्होंने बोला नहीं 60,000 भी बहुत ज्यादा है, यू हैव टू गिव अस समथिंग नियर टू 70. सो नाउ दे बोथ अग्रीड टू 75,000, राइट. जबकि मी, राइट, द वन हु वाज नेगोशिएटिंग, मेरे दिमाग में मेरा ओरिजिनल नंबर वाज 75,000 ओनली. द 80,000 वाज इट वाज प्रेजेंटेड जस्ट टू प्रेशराइज देम, ठीक है. तो यही चीज आई फील एंड इवन मोस्ट ऑफ द लीडर्स आल्सो फील समवेयर दैट इज रिलेटेड टू द डोर इन द फेस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, हमारे पास पहले कितना था?
इट वाज लाइक बिलो 8%, ठीक है, सॉरी इट वाज लाइक बिलो द 8%, राइट। अब उसके बाद में हमारे पास नंबर कितना है 50%। इनिशियल नंबर हमारे पास 50% दे दिया, इतना ज्यादा हाई अमाउंट। अब इससे क्या हुआ, पैनिक क्रिएट हो गया, राइट। हमारा जो मेंटल बेंचमार्क था वो सेट कर दिया गया यूएसए ने, राइट। यूएसए सेट द मेंटल बेंचमार्क, एवरीवन स्टार्टेड थिंकिंग नाउ फाइनली अब हमारे पास में क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, हम लोग यूएस में बेसिकली चीजें नहीं बेच पाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगी वहां पे चीजें, वेयर बिजनेसमैन ट्रेडर्स एवरीवन फेल्ट that pressure over here after seeing this number that is 50%, right? But now after this 50%, the number has been reduced to 18%. Now this seems acceptable, right? But this 18%, is this holding some strategy? Is this the strategy that the US was trying to help, right? तो ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करनी है। So this is the door in the policy which basically set a mental benchmark। पहले पैनिक क्रिएट किया जाता है, फिर उसके बाद में ओरिजिनल नंबर सेट किया जाता है जस्ट टू मेक अश्योरेंस कि देखो जो पहले नंबर दिया था उससे तो कम ही है ना। तो इज दिस 18%, ये भी क्या हमारे लिए डेंजरस है या नहीं, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, राइट। सो बिफोर दिस 50% एंड 80%, द एक्चुअल बेसलाइन वाज वेरी लो, राइट। इससे तो बहुत कम था और हम लोग 18% में राजी हो गए हैं। सो इज दिस समथिंग, इज दिस द स्ट्रेटेजी दैट यूएस वाज प्लानिंग, दिस वी हैव टू डिस्कस, ठीक है। अब इसके साथ साथ में हमें ये समझना पड़ेगा ये जो टैरिफ है, राइट, दिस इज नॉट द होल स्टोरी, इसके बाजू में बहुत सारी चीजें हैं दैट वी हैव टू कवर, ठीक है। तो इस चेंज से पहले हमारे पास में क्या क्या हो रहे थे, जो हमारे लेदर है, जो हमारे कारपेट्स है, जो हमारी टेक्सटाइल्स है, राइट। सो ऑल द प्रोडक्ट्स, राइट, दे हिट हार्ड बिकॉज द यूएस टैरिफ्स मेड देयर प्रोडक्ट्स मच मोर एक्सपेंसिव। जब हमारे पास 50% का टैरिफ दे दिया गया तो इट बिकेम लाइक अ पैनिकिंग सिचुएशन इन द मार्केट, राइट। तो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रहा था इस सिचुएशन की वजह से, राइट। तो आफ्टर द चेंज जब हमारे पास 18% हो गया तो क्या हुआ, फाइनली पीपल फेल्ट कि चलो द सिचुएशन इज रिड्यूस्ड। तो नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस, नाउ 18% हमारा जो हमारा लेदर है, हमारा कारपेट है, हमारा एक्सपोर्ट है, राइट, वो थोड़ा और ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट में वापस से आ गया, राइट। So we feel that finally that it will help increase our export also, right? हमारे आने वाले कुछ महीनों में एक्सपोर्ट वापस से स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, राइट, क्योंकि बायर विल फाइंड लाइक इंडियन प्रोडक्ट्स मोर ज्यादा चीपर और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, तो इट विल बी गुड, ठीक है। तो ये सिनेरियो अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है बिकॉज यूएस रिड्यूस्ड टैरिफ्स फ्रॉम 50% टू 18%, ठीक है। तो जो हमारा इंडियन प्रोडक्ट्स है दैट बिकेम चीपर और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया अमेरिकन बायर के लिए। ऑन पेपर दिस लुक लाइक अ विन विन सिचुएशन, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया लग रहा है ये चीज देखने के लिए कि चलो हमारा जो इंडियन इंडस्ट्री है दैट इज रूलिंग अगेन दी मार्केट। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आईटी सेक्टर और वीजा की, ठीक है। अब यूएस क्या बोल रहा है कि वो H1B वीजा को इजियर बनाएंगे फॉर इंडियन टेक वर्कर्स, ठीक है। तो ये अच्छी लग रहा है कि चलो अच्छी तो बात है, इसमें क्या गलत बात है। H1B वीजा अगर इट विल बी इन द मार्केट और उसके बाद में हमारे लिए टेक वर्कर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है, हमारे वहां पे वर्कर्स जाएंगे और वहां पे जाके हमारे आईटी के लोग काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इट्स गुड फॉर देम, ठीक है। बट डोंट यू थिंक दैट इंडिया विल लूज बेस्ट आईटी वर्कर्स ओवर देयर, हमारे रिसोर्सेज का यहाँ से वहां का शिफ्ट हो रहा है। तो इज दिस समथिंग टू सेलिब्रेट अबाउट, राइट। सो पॉइंट नंबर 1 हियर वी हैव, राइट। उसके बाद में sensitive Indian data could end up in American hands and India might lose control over its own digital resources। अब देखो यहाँ पे एक डिजिटल डाटा का भी पार्ट है, तो यूएस को क्या चाहिए कि इंडिया की जो कंपनी है डाटा शेयर करे फ्रीली, राइट। तो ये बहुत ज्यादा आपको साउंड लग रहा है कि चलो अच्छी बात है ना, कॉर्पोरेशन की तो बात हो रही है यहाँ पर, राइट। व्हाट्स देयर टू शाउट अबाउट दिस, है ना। तो यूएस वांट्स कि हमारा जो सारा का सारा डाटा है हम लोग उनके साथ में शेयर करें, राइट। बट इसके साथ साथ में ये भी तो देखो ना कि हमारा जो सेंसिटिव डाटा है वो हमारा अमेरिका के हैंड में चला जाएगा, राइट। और जो हमारा कंट्रोल है, राइट, ऑन डिजिटल रिसोर्सेज वी आर लूजिंग दैट, राइट। तो हमारा डिजिटल रिसोर्स कहाँ गया, दिस इज पॉइंट नंबर 2 दैट वी हैव, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि चलो ये दोनों सिचुएशंस हमारे पास में है, लेकिन इफ यू रिमेंबर हमारा गोल क्या है 247 तक, विकसित भारत, ठीक है। तो वो विकसित भारत जो हमारा 2047 तक का गोल है, दिस कंसेप्ट ऑफ मेक इन इंडिया, क्या हम कहीं ना कहीं इस डील के चलते हुए क्या वो भी गवा रहे हैं, दिस इज द अनदर पॉइंटर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखो अगर हम टैरिफ लो कर रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर लोअरिंग दिस टैरिफ तो क्या हो रहा है हमारे पास में, इंडियन गुड्स दैट माइट सेल लाइक मोर अब्रोड, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, फॉरेन कंपनीज दे कुड जस्ट यूज इंडिया एज अ फैक्ट्री, ठीक है। बिना यहाँ पर इन्वेस्ट करें हम क्या बन के रह जाएंगे, हम बन के रह जाएंगे सिर्फ फैक्ट्रीज। हम वहां पर क्या दे रहे हैं उन्हें,
रिसोर्सेज बना कर दे रहे हैं, क्या हमारे यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करेगा? That is the question that are coming up, right? India could end up making products for the world while most of the profit decision that will stay abroad only, right? अगर इंडिया बहुत ज्यादा रिलाई करेगी एक्सपोर्टिंग पर, ठीक है, यूएस में, सो दिस कंसेप्ट ऑफ मेक इन इंडिया, ये तो कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा ना, है ना? तो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंडियन कंपनीज, हम क्या बनकर रह जाएंगे? हम सिर्फ एक सप्लायर बन के रह जाएंगे किसी और के बिजनेस के लिए, राइट? तो इट इज वेरी इजी, ठीक है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं डील को, राइट, कि चलो 50% से 80%, 18% हो चुका है एंड कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, ठीक ही तो है ये वाला, है ना? बट हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे रेज करना चाहिए कि आर वी रियली गेनिंग समथिंग, या फिर जितना हम लोग गेन कर रहे हैं उससे ज्यादा हम वी आर लाइक लूजिंग, right? So US is just taking the best of, like, advantage of our vulnerable situation or not? So these are the questions that are coming up with this deal, ठीक है? जो ये रिडक्शन हुआ है किस बेसिस पर हुआ है, राइट? और इससे सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास में आती है, दैट इज हमारे पास रशिया का एंगल, ठीक है? अब रशिया के एंगल की जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा व्हाट आई विल से, ठीक है, कि प्रॉब्लम यहाँ पर रेज क्या हो रही है, किस बेसिस पर ये डील साइन हुई है, और ये जो टैरिफ बेसिकली रिड्यूस हुआ है किस बेसिस पर रिड्यूस हुआ है। अब देखो, ट्रंप ये क्लेम कर रहा है एंड दिस इज क्लेम्ड बाय ट्रंप ओनली अभी तक, राइट? तो इंडिया अग्रीड टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एंड इंस्टेंट दिल बाय फ्रॉम यूएस, ठीक है? अभी ये चीज किसने बोली है? सिर्फ ट्रंप ने बोली है, राइट? तो यहीं पर हमारी की सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि रशिया क्या है? रशिया हमारा लॉन्ग टर्म फ्रेंड है, ठीक है? इट इज लाइक एन अलाइ फॉर इंडिया। अब तुम ये देखो कि एक फ्रेंडशिप हमने इतने टाइम से मेंटेन करी है, राइट? नाउ यूएस वांट कि वो हम लोग क्या करें, हम लोग जो है रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दें, राइट? उसके बाद में जो भी हम लोग रिसोर्सेज, जो भी चीजें लेंगे, दैट विल टेक फ्रॉम यूएस, राइट? अब अगर हम देखें, अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं, तो आपको याद होगा कि रशिया ने कैसे सपोर्ट करा था ड्यूरिंग वॉर्स ऑल्सो, हमें डिफेंसेस सप्लाई करे थे, इक्विपमेंट्स दिए थे, राइट? और उसके बाद इंडियन डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल फोरम्स में, जैसे कि यूएन में, हमारी कितनी हेल्प करी है, हमें हमारे लिए दे बेसिकली ऑलवेज वर देयर टू बैक अस अप, है ना? तो ये सारी की सारी चीजें हमें रशिया ने दी है, राइट? तो बट यहाँ पर अभी तक रशिया ने ये बोला है दैट वी डिड नॉट गेट एनी ऑफिशियली कंफर्म्ड इश्यूज रिलेटेड टू दिस फ्रॉम द इंडिया, बट यस, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वी ऑल नो दैट वेयर दिस फ्रेंडशिप विल लीड एंड हाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अस। एक चीज, एक अलाई जो हम लोग इतने टाइम से मेंटेन करके रख रहे थे, समवेयर दिस विल बी लूजन, ठीक है? सो द चैलेंज फॉर इंडिया नाउ इज कि उनके पास में ये ट्रेड का जो बेनिफिट है, जो यूएस से मिल रहा है, जो 15% से 18% हो चुका है, दैट वी हैव टू मेंटेन। उसके साथ साथ में हमें मेंटेन और बैलेंस करके चलना है आवर रिलेशनशिप विद यूएस आल्सो। So this is the dilemma that basically India is facing right now, ठीक है? अब basically lowering these tariffs, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट हो जाएगा, हेल्प करेगा इंडस्ट्रीज को, ठीक है? एंड रिलाइंग टू हेवीली ऑन यूएस ऑयल और मे बी अपसेटिंग रशिया, दिस विल आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम हमारे डिफेंस में, एनर्जी सिक्योरिटी में, और उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी। एंड इसीलिए समवेयर to make this move, right, to support US whatever the deal they are coming up with, हम कहीं ना कहीं नाराज करेंगे रशिया को। So this is the problem. तो हम लोग इस डील की तरफ जा रहे हैं, तो at what cost we are going, that we have to understand, right? This Russia's angle on this trade is the biggest move, right? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा political move है, as we have seen that how Russia helped in this long strategic friendship, that is going to be affected अगर balance करके हम नहीं चले तो, right? And we all know that how much efforts we took to maintain this friendship with each other, right? हमारे पास पास में भी हमेशा डिफेंस में वो खड़े रहे हैं, यूएन का कोई डिसीजन रहा है, they have helped us, right? हमेशा कोई प्रॉब्लम रही है, it was like internal problem, external, Russia was always and always there, right? So ये maintain करने के लिए this long term friendship took lots and lots of resources, lots and lots of management, and lots of things, right? But now this is at stake. So now we have to ask the question that if we are accepting this deal, then at what cost we are accepting, ठीक है? I hope this Russia's angle is understood to you. ओके, अब हमने रशिया का एंगल भी समझ लिया, अब समझते हैं हम लोग जीरो टैरिफ की बात। अब देखो, ट्रंप ने बोला है
कि इंडिया जो है रिड्यूस करेगा, टैक्सेस को रिमूव भी करेगा, ठीक है, एंड बेसिकली रूल्स ऑन अमेरिका गुड्स ऑल्सो, राइट। मतलब जो भी हमारे पास जो भी गुड्स जाएंगे वहां पर, राइट, उन पे सारों पे टैक्स हटा दिया जाएगा। इट विल बी लाइक अ जीरो टैक्स ऑन दीज गुड्स, राइट, जीरो, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे कैसे अफेक्ट करेगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है दीज थिंग्स, ठीक है। एक तो टैक्सेस, लाइसेंसिंग पे, कोटास पे एंड टैक्सेस पर, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज टैरिफ्स, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा टैक्स होते हैं जो कि इंपोर्टेड गुड्स पर लगाए जाते हैं। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो मतलब परमिशन की जरूरत पड़ती है, राइट, दैट द इंपोर्टेड गुड्स बेचने हैं या नहीं बेचने हैं, राइट। कोटास की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली डिसाइड किया जाता है, एक बेसिकली लिमिटेशन की बात होती है दैट हाउ मच कैन बी इंपोर्टेड, राइट। So all the other rules also are there, right? So all the other rules basically that make it harder for American products to come into India, उन सभी चीजों पर basically zero tariff की बात कर रहे हैं। तो basically all the products, many products जैसे कि industrial products are there, ठीक है, और कुछ कुछ हमारे farm products भी हैं, right? Basically that tariff could go even down to zero. इसका मतलब ये है कि अमेरिकन गुड्स जो है दे कैन कम इनटू इंडिया ऑलमोस्ट फॉर फ्री, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो है जो अमेरिकन गुड्स होंगे दैट विल बी कंज्यूम्ड एज अ चीपर गुड्स, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज अमेरिका की यहाँ पर आ रही है एंड दैट गुड, दैट रिसोर्स इज वैल्यूएबल, ठीक है, और उसके बाद वो कोई ब्रांड का है, राइट, सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट केओस इन आवर मार्केट। कंपटीशन यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर बाहर से कोई सस्ती चीज आ रही है तो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट पीपल आर गोइंग टू बाय दैट, राइट। तो यहाँ पर जो कंपटीशन बढ़ जाएगा, सो द कंसेप्ट ऑफ मेक इन इंडिया आल्सो, द कंसेप्ट ऑफ the competition also, it will be delivered to the people, right? So this is the situation that we'll be facing because of this zero tariff, ठीक है। इसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अभी इंडिया ने ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि ऐसा होगा या नहीं, राइट। तो अभी जो है, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है दैट आर कमिंग फ्रॉम ट्रम्प्स स्टेटमेंट, ठीक है, रशिया वाली भी, एंड दिस जीरो टेरिफ इज आल्सो, राइट, बट दिस इज डिलीवरिंग सम पॉलिटिकल मैसेज टू अस। अभी कोई डिटेल वर्जन या कोई साइंड एग्रीमेंट हमारे पास में नहीं है जो हमें ये चीज बताए कि टैरिफ जो है इट विल गो टू जीरो और नॉट, राइट। अगर हम बात करते हैं ये इफेक्ट कैसे करेगा इंडिया को, तो देखो पॉजिटिव आउटकम देखते हैं। पॉजिटिव आउटकम ये है कि हमारे पास चीपर प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट हो जाएंगे फॉर इंडियंस कंज्यूमर्स, ठीक है। इन लोगों के लिए, ठीक है, हमारे पास कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे विच विल बी चीपर, राइट, एंड विच विल बी गुड फॉर कंज्यूमर एंड बिजनेसेस। अर्लियर एक्सेस रहेगा एडवांस मशीनरी एग्रीकल्चर टूल्स का, ठीक है, चीप रहेंगे तो इजीली हम लोग खरीद पाएंगे, राइट, सो इट्स गुड थिंग। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट हमारा ज्यादा रेशियो में है एज कंपेयर टू दीज पॉजिटिव इंपैक्ट, राइट। हमारा जो लोकल इंडस्ट्रियल है, हमारा फार्मर्स मैन्युफैक्चरर, दे स्ट्रगल, दे हैव टू कॉम्पीट विद दिस चीपर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट होती है। अनदर थिंग इज रिस्क ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस। हमारा कंसेप्ट, दैट कंसेप्ट ऑफ 2047 ऑफ विकसित भारत, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है, मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट हम लोग रेज कर रहे हैं, दैट विल बी समवेयर वो प्रॉब्लम में रहेगा, राइट। सो दिस इज दी ओवर डिपेंडेंस दैट विल बी हैविंग, ठीक है। हम सब कुछ इंपोर्ट करते रहेंगे, राइट, सो द कंसेप्ट ऑफ मेक इन इंडिया विल बी गोन, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन दैट वी आर फेसिंग बिकॉज ऑफ दिस जीरो टैरिफ्स। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट हमारे उसके पास में। अच्छा, इसके साथ साथ में अब समझेंगे कि एग्जैक्टली ये ट्रेड डील है क्या। अब देखो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट सबको पता है, जब दोनों कंट्रीज दे अग्री टू रिड्यूस टैक्सेस, ठीक है, ऑन सम गुड्स, सो दिस विल मेक एक्सपोर्ट्स चीपर और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देगा, ठीक है। मतलब जो बिजनेसेस हैं उनको इजीली एक्सेस हो जाएगा हमारे फॉरेन मार्केट्स का, राइट। बट दिस ट्रेड डील्स आर रिस्की टू वन ब्लाइंडली, स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां पे मिलियन ऑफ पीपल आर लाइक डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग एंड डेयरी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट किसका समझने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंसेप्ट दिस रिलेशनशिप ऑफ फार्मिंग एंड डेयरी, ठीक है, और इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट इंडिया, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इंडिया कहीं ना कहीं इस ट्रेड डील में ये चीज बैलेंस करके रख रही है that with strong relations are maintained with Russia also, और ये जो delicate situation है that could be also solved। बट जब हम लोग फार्मिंग की बात करते हैं तो फार्मिंग बेसिकली प्लेज इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, विल टेल। यस, ओके, तो
बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं, जब ये न्यूज आई राइट, तो आर बेसिकली कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने इंडिया की पोजीशन को रखते हुए बहुत साफ साफ बोल दिया है कि इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा फार्मर्स पर और डेली प्रोड्यूसर्स पर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रखा गया है। इसका मतलब ये है कि ठीक है, इंडिया जो है रेडी है ट्रेड करने के लिए, इंडिया है रेडी है टैरिफ्स रिड्यूस करने के लिए कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर और एक्सपोर्ट गुड्स पर। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्रीकल्चर को और डेयरी को भी इस ट्रेड में शामिल करेंगे। दे विल प्रोटेक्ट दीज टू एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अगर टैरिफ्स रिड्यूस भी हो जाते हैं तो बेसिकली अगर हम किसकी बात करते हैं, दिस सेंसिटिव फार्म एंड दिस डेयरी आइटम्स विल बी स्टेइंग प्रोटेक्टेड। हमारा जो फॉरेन मिल्क है, चीज है, बटर है, राइट, गेन्स, बेसिकली ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट, दे विल फ्लड इनटू इंडियन, दे विल नॉट फ्लड इंडियन मार्केट्स, राइट। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये कहीं ना कहीं हमारी की जाएगी थ्रू हाई टैरिफ्स, इंपोर्ट लिमिट्स के साथ में, जिसका मैंने मेंशन किया था पिछली स्लाइड में, दैट इज कोटास, कि हम कितना यूज कर सकते हैं, राइट। बेसिकली इंपोर्ट की लिमिट क्या होगी, राइट, दैट स्लो और डिलेड टैरिफ रिडक्शन आल्सो, है ना। तो अब ये समझते हैं कि ये एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स इतना सेंसिटिव क्यों है, व्हाई वी आर प्रोटेक्टिंग देम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास में लाइवलीहुड इश्यूज। तो फार्मिंग एंड डेयरी सपोर्ट करोड्स ऑफ पीपल। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इन द 60th FC इट इज मेंशन दैट इट इज लाइक बेसिकली क्लेम टू 42.5%, right? So when we talk about this, what it tells us that they are basically giving us more and more resources to us, more and more advantages to us. ठीक है, तो ये बात बोल दी गई है कि इंडिया इस चीज पे तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, राइट। सो अबाउट 40 to 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन किस चीज पर डिपेंड रहती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहती है फॉर द इनकम, राइट। बहुत सारे फार्मर्स, दे आर लाइक स्मॉल एंड दोज मार्जिनल फार्मर्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली विद दिस लिटिल लैंड ऑल्सो, दे हैव वेरी लिटिल लैंड, और इतना ज्यादा इनकम जनरेट करने की वजह से दिस इज वेरी सेंसिटिव फॉर अस, दिस इज वेरी सेंसिटिव फॉर इंडिया, राइट। तो डेयरी गिव्स रेगुलर डेली इनकम। ठीक है, जैसे कि हमारे क्रॉप्स हो गए विच आर इसेंशियल, राइट, विच आर सीजनल ऑल्सो। तो इसी की वजह से ये दोनों चीजें जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, राइट। तो अगर थोड़ा सा भी प्राइस अगर यहाँ पर गिरता है, राइट, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा फार्मर्स है डेप्थ की तरफ पुश कर देगा। दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर अस। ठीक है, जो हमारी एबिलिटी है, राइट, टू बाय फूड, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। हमारा जो फार्मर्स का डिस्ट्रेस है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। अच्छा, सिर्फ यही रीजन नहीं है, एक रीजन और है, द रीजन इज प्रोटेस्ट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला है पहले भी आपको कि फार्मर्स प्रोटेस्ट, हाउ बिग, ठीक है, इट हैपन, अभी पहले ही हमने देखा था, राइट। सो टू कंसीडर दैट, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल भी है इसमें कि फार्मर्स को इसमें बेसिकली ये नहीं नाराज नहीं कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द अनदर थिंग, हमारा जो है वी कैन नॉट make angry those farmers, क्योंकि जो हमारा protest has, we have seen also how much it affected us, right? So there is political sensitivity also that we have seen. Power of farmers is also known, right? तो हम अगर देखिए तो जो हमारा farmers है, those are like big political forces in India, है ना। हमारे पास लार्ज वोटिंग ग्रुप कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं फार्मर्स, इसीलिए इन्हें नाराज तो नहीं किया जा सकता है, राइट। उसके बाद में फूड सिक्योरिटी अगर हम बात करें तो इंडिया कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर फूड। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग बेसिकली एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, राइट। सो देयर कुड बी सिचुएशन आल्सो, राइट, जहां पर बेसिकली वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। सो वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दोज कंट्रीज, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे नेशनल सेफ्टी इशू भी है। India must be able to feed its own people, right? As I've explained you before also, India has 140 plus crore population. हमारा जो अगर हम फॉरेन फूड पे डिपेंडेंट रहेंगे तो इट इज वेरी रिस्की फॉर अस, राइट। तो हमारा अगर कोई ग्लोबल क्राइसिस होता है, कोई वॉर हो जाता है, पेंडेमिक हो जाता है, राइट, और किसी कंट्री ने, जिस कंट्री से हम लोग बेसिकली इंपोर्ट करा रहे हैं, उन्होंने एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया, या फिर उनकी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो वो डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी इन इंडिया, दैट ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसा अगर हुआ कि हमारा जो इंपोर्ट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया, राइट, तो जो हमारा चीप फॉरेन फूड एंटर करेगा इंडिया में, तो इंडिया फार्मर्स कुड नॉट कम्पीट विद दैट। ठीक है, लोकल फार्मिंग जो है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएगी। इंडिया विल बिकम डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स आल्सो, एंड दिस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी, राइट। दिस इज व्हाई जो हमारा डेयरी और हमारा दिस फूड प्रोडक्शन, दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर अस। ठीक है, अब उसके बाद में हम डेयरी की बात करते हैं तो इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो हमारा डेयरी है वो बहुत सपोर्ट करता है छोटे छोटे फार्मर्स को, लैंडलेस फैमिलीज को, और उसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी फैक्टर जो है वुमेन इन रूरल एरियाज, उसको सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, तो जो हमारा मिल्क है दैट गिव डेली कैश इनकम,
राइट। अगर हमारे पास में चीप फॉरेन मिल्क प्रोड्यूसर आ जाते हैं तो जो हमारा लोकल डेयरी फार्मिंग है वो कहीं ना कहीं सफर करने वाला है बिकॉज ऑफ दिस इज व्हाई these 3 pointers tell to us that why agriculture and dairy is sensitive to us, and we are mentioning in this deal these two, not at the cost of कि हमें कोई problem हो in future also, right? I hope this is clear to you. Okay, now with this, let's move to the question. In the context of international trade, which of the following statements are correct? India is member of the World Trade Organization. The WTO permits member countries to protect their agricultural sector under certain conditions. क्या होगा इसमें? The correct option is 1 and 2. India is a member of the World Trade Organization. ये तो हम सबको पता है, right? It is the member of World Trade Organization, right? कब से है ये? ये है हमारे पास 1995 से. Since 1995, we are member of WTO, right? The WTO permits member countries to protect their agriculture under certain conditions. That is also true. So the correct option that we have is 1 and 2. Very good, Divyam Bachche. Okay. Now next, what is the most likely impact of imposing high import tariffs? First, increase in foreign direct investment. Second, protection of domestic industries. C, increase in exports. D, reduction in trade deficit in all cases. The correct answer that we have is the correct option that we have is B, protection of domestic industries. जो high import tariffs होते हैं, right? वो क्या करेंगे? Foreign goods को और ज्यादा expensive बनाएंगे, right? और जो हमारे imported goods हैं, वो basically और ज्यादा costly हो जाएंगे. So people will prefer what? They'll prefer domestic products, right? तो ये local industries को help करेगा survive करने में, compete करने में help करेगा, right? Very good, B, good. I hope the news is understood to you. Okay, now let's move to the another news. तो दूसरी न्यूज क्या बोलती है? SC comes down heavily on WhatsApp and Meta over take it or leave it privacy. ठीक है, तो ये take it or leave it is important. Let's understand what this means. तो WhatsApp जो है हमारा widely यूज होता है मैसेजिंग ऐप के लिए, right? Used by people from like all work of life, right? Students से लेके farmers तक everyone are using, right? Professional से लेकर elderly people like everyone is using this, right? Without this we cannot imagine ourselves, है ना? तो WhatsApp बेसिकली कहीं ना कहीं टूल बन चुका है हमारी डेली लाइफ के लिए, राइट? सो इन 2021 द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्राइवेसी पॉलिसी, और इस प्राइवेसी पॉलिसी में उन्हें बोला गया कि आपको अग्री होना पड़ेगा टू शेयर सर्टेन टाइप्स ऑफ डाटा विद अस, विद मेटा, राइट, द पेरेंट कंपनी, राइट? और या फिर आपको व्हाट्सएप जो है यूज करना बंद करना पड़ेगा. दीज वर द डायरेक्शन दैट वर गिवन बाय द कंपनी, ठीक है? तो यहाँ पे कोई रियल चॉइस नहीं दी गई थी टू द यूजर्स, राइट? तो यहाँ पर क्या बात की गई थी? या तो आप इसको एक्सेप्ट करो पॉलिसी को, नहीं तो आप जो है ऐप यूज नहीं कर पाओगे, राइट? सो दिस टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर अ यूजर मस्ट एक्सेप्ट टर्म्स, और या फिर एक सिचुएशन दी जाती है कि आपको प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ेगा. दिस सिचुएशन, दिस पोजीशन इज नोन एज टेक इट और लीव इट, ठीक है? इसको बोला जाता है टेक इट और लीव इट प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है? अब पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या रेलेवेंस है इस न्यूज का, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. उसके बाद में न्यूज समझेंगे. सो दिस इज कनेक्टिंग टू अस विद जीएस पेपर 2. फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला व्हाइल कनेक्टिंग दीज फंडामेंटल राइट्स, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. डिजिटल गवर्नेंस क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इस न्यूज में, दैट विल अंडरस्टैंड. उसके बाद में जीएस पेपर 3 में कंपटीशन लॉ एंड बिग टेक रेगुलेशंस, जब कोई कंपनी ऐसे रेगुलेशंस लेकर आती है तो हाउ गवर्नमेंट इज रिएक्टिंग विद दैट, दैट विल आल्सो अंडरस्टैंड, ठीक है? अब हमें ये पता है कि व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप जो है इंडिया में, इट्स नॉट लाइक अ टूल सिर्फ जो हम यूज कर लेते हैं. इट्स लाइक अ पब्लिक यूटिलिटी नाउ. ओवर 500 मिलियन इंडियन यूजर्स आर यूजिंग व्हाट्सएप, ठीक है? लोग इसे अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं. पर्सनल चैट्स के लिए यूज करते हैं, फैमिली ग्रुप्स आर देयर, बिजनेस कम्युनिकेशंस आर हैपनिंग देयर, एजुकेशन, गवर्नमेंट मैसेजिंग, every single thing is happening there. This is a tool which is used worldwide, ठीक है? तो बहुत सारे इंडियंस के लिए, स्पेशली अगर रूरल एरियाज की बात करें, तो व्हाट्सएप इज समवेयर कंसीडर्ड एज व्हाट, एज इंटरनेट, ठीक है? एक बेसिकली टूल बन चुका है जहां पे ह्यूज यूजर डेटा इज बेस्ड, राइट?
सो व्हाट्सएप here basically holds a dominant positions in the messaging market. ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम ये हुई है कि 2021 में privacy policy was there, right? So in 2021 if you remember there was a new privacy policy that was introduced, right? अब इस privacy policy ने आपको याद होगा बोला था कि आपको अलाउ होगा व्हाट्सएप को यूज करना, राइट, बट आपको अपना कुछ पर्सनल डेटा शेयर करना पड़ेगा विद द पेरेंट कंपनी, ठीक है, जैसे कि आपका फोन नंबर हो गया, यूसेज पैटर्न हो गया, बिजनेस इंटरैक्शंस हो गई, राइट? सो यू हैव टू अग्री टू दिस. अगर आप अग्री नहीं करते हैं तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे व्हाट्सएप यूज करना, राइट? सो दिस इज द पॉलिसी दैट इज नोन एज व्हाट, टेक इट और लीव इट, ठीक है. अब इस चीज पर गवर्नमेंट ने क्या किया दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है. अब देखो, गवर्नमेंट बेसिकली अवॉइडेड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई ने यहाँ पे इंटरवेन क्यों किया, और इंटरवेन करने के बाद में व्हाट बेसिकली दे सेड दैट विल अंडरस्टैंड. तो सीसीआई, राइट, दे लुक्ड, राइट, वो बेसिकली पहले ये देखते हैं कि जो हमारे पास कंपनीज हैं, राइट, वो कोई मार्केट पावर मिसयूज तो नहीं कर रही है जैसे कभी मेटा ने करा है, राइट. अगर वो कर रही होती है तो बेसिकली दे see measures and they basically talk to them, right? So CCI said that WhatsApp policy was anti-competitive, ठीक है. क्या बोला उन्होंने, बोला कि एंटी कॉम्पिटिटिव है, एज दे आर टॉकिंग कि आपको या तो पॉलिसीज मारनी होगी या फिर यू हैव टू लीव इट, ठीक है. अब उन्होंने बोला, उन्होंने तीन चीजें हमारे पास प्रेजेंट करी, ठीक है. पहला था नो रियल चॉइस फॉर यूजर्स. उन्होंने बोला कि यूजर्स के पास में कोई चॉइस ही नहीं है, एज the logo, the comment basically said take it or leave it, right? तो users were somewhere forced कि आपको डेटा शेयरिंग एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, राइट? तो कंसेंट तो कहीं पर दिया ही नहीं गया, राइट? सो कंसेंट वाज नॉट गिवन, सो देयर वाज नो रियल चॉइस फॉर यूजर्स. उसके साथ साथ में अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, जस्ट बिकॉज दे हैव एक्ट, जस्ट बिकॉज दे हैव पावर, तो समवेयर दे वर मिसयूजिंग इट, राइट? तो व्हाट्सएप यूजेस डोमिनेंस टू एक्सट्रैक्ट पर्सनल डेटा, राइट? So users stayed not because they agreed, but because they had no alternative, right? उनके पास कोई choice नहीं थी, उन्हें WhatsApp use भी करना था, so they were being forced to accept it, right? So this is the second thing, that they were abusing of that position. After this, data as a business weapon. तो यहाँ पे CCI ने देखा कि data collected like could give Meta an unfair advantage also. एडवर्टीजमेंट में, बिजनेस सर्विसेज में, या फिर मार्केटिंग प्रोफाइलिंग में, राइट? तो इसकी वजह से सीसीआई ने यहाँ पर 213 करोड़ का बेसिकली फाइन लगाया है मेटा पर, ठीक है, और व्हाट्सएप पर, राइट? अब ये जो हमारा केस है वो गया सुप्रीम कोर्ट पर. क्यों गया दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो बेसिकली मेटा एंड व्हाट्सएप दे चैलेंज द सीसीआई डिसीजन. उन्होंने बोला कि जो पॉलिसी है वो तो लीगल है, राइट? यूजर जो है उनका खुद का कंसेंट है, उन्होंने अग्री किया, हमने थोड़ी ना उंगली लगा के वहां पे उन्होंने अग्री करवाया, नहीं, उन्होंने खुद से अग्री किया. हमने तो पूरा एक लीगल नोटिस उनको दिया हुआ है, एंड दे अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, एंड दे आर अग्रीइंग टू, एंड दे आर यूजिंग आवर ऐप, ठीक है. हमें थोड़ी ना फोर्स किया, एंड वी तो हैव लाइक गिवन द चॉइस आल्सो दैट इफ यू आर नॉट अग्रीइंग टू आवर पॉलिसी यू कैन लीव द ऐप, ठीक है. तो व्हाई वी आर गेटिंग दिस फाइन, दिस वाज सेड बाय द मेटा टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. इसीलिए ये गया सुप्रीम कोर्ट के पास में, ठीक है. अब इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 3 जज का बेंच बेसिकली वहां पे था. चीफ जस्टिस सूर्या ने बेसिकली दे लेड द 3 जज बेंच, राइट? अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स आल्सो, कि सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या चीजें मेंशन की है, राइट? अच्छा, सबसे पहली चीज तो उन्होंने मेंशन किया दैट प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. क्या चीज बोला उन्होंने कि प्रिवेसी क्या है, हमारी फंडामेंटल राइट है. अच्छा, जल्दी लिख के बताओ कि क्यों है फंडामेंटल राइट. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला होगा, क्यों फंडामेंटल राइट है प्रिवेसी. सो कोर्ट ने याद दिलाया कि जो प्रिवेसी है, राइट, दिस इज कमिंग अंडर आर्टिकल 21, राइट? उन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 में आता है, लाइफ टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में आता है, ठीक है. और यहाँ पे क्लियरली एस्टेब्लिश कर दिया गया विद द जजमेंट आल्सो कि आपको समझना होगा कि यू कैन नॉट फोर्स एनीवन, ठीक है. दूसरी यहाँ पर जो चीज आई, दूसरी चीज हमारे पास आती है फ्री सर्विसेज. अब तुम फ्री सर्विस के नाम पर तुम ये बोलते रहोगे कि हम तो उन्हें फ्री में ऐप दे रहे हैं, ठीक है, उसके बदले में तुम डेटा भी तो ले रहे हो ना, है ना? पर्सनल डेटा की भी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. दिस इज सेड बाय हूम, दिस इज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट. उन्होंने बोला कि जो हमारा पर्सनल डेटा है इसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू है, तो तुम फ्री में कुछ नहीं ले रहे हो.
सो द सेकेंड पॉइंट दैट यू आर मेंशनिंग कि हम लोग तो फ्री में ले रहे हैं, राइट, फ्री सर्विस वाला पॉइंट, दिस इज नॉट द केस, ये फ्री एक्सप्लॉयटेशन आप बोलोगे, राइट, क्योंकि उस डेटा की बदले में आप जो डेटा ले रहे हो उसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू है, राइट। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो उन्होंने बोली है कि कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, फोर्सफुल चीजें नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि तुमने लीगल नोटिस बनाकर दे दिया है तो इट डज नॉट मीन कि तुम प्रेशराइज करोगे कि छोड़ दो ऐप को, राइट। तो उन्होंने क्रिटिसाइज करा यहाँ पे द पॉलिसी ऑफ टेक इट और लीव इट मॉडल, राइट। उन्होंने ये बोला कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा ना कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, जो हमारी टेक्निकल प्रिवेसी पॉलिसीज है उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर तुम कंसेंट की बात कर रहे हो वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, पहले उन्हें बताओ तो सही कि ये मेजर्स है, राइट, वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए। इफ अ पर्सन इज फोर्स्ड टू क्लिक अग्री जस्ट टू स्टे कनेक्टेड, राइट, तो उसको रियल कंसेंट का नाम नहीं दे सकते हम, राइट। तो यही चीज उन्होंने बोली है कि इसको कंपेयर मत करो कि आपने बेसिकली कहीं ना कहीं फ्री प्रिवेसी उन्हें दी हुई है, आपने नहीं दिया, कोई कंसेंट का काम नहीं है यहाँ पे। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अब उसके साथ साथ में उन्होंने बोला है कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, ठीक है। सो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग सी वार्निंग दिया दैट इफ अ कंपनी कैन नॉट रिस्पेक्ट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, तो उन्हें बेसिकली इंडिया में बिजनेस करने से पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो डायरेक्ट स्टेटमेंट आई है ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि इंडिया के लॉ जो अप्लाई करते हैं और ग्लोबल टॉप कंपनीज पर भी अप्लाई होते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इफ दे आर इन्वेडिंग समवन्स प्राइवेसी। और अगर बेसिकली कोई भी आर्टिकल, कोई भी फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट होगा तो सुप्रीम कोर्ट विल इंटरवेन। सो दिस इज बेसिकली अंडरस्टूड बाय दिस, ठीक है। इकोनॉमिक पावर का मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ओवरराइड कर जाओगे, नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में गवर्नमेंट वाज लाइक ब्रॉट इनटू दिस केस, कैसे? सो द कोर्ट एडिड दैट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, राइट, एज अ पार्टी, क्यों? क्योंकि बिकॉज डिजिटल प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ बिजनेस इशू, ये एक पॉलिसी की बात हो रही है, यहाँ पे एक गवर्नेंस इशू बन चुका है, क्योंकि ये डाटा प्रोटेक्शन लॉज इफेक्ट कर रहा है। हमारा जो डिजिटल सॉवरेनिटी है सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स के राइट्स के लिए, दैट इज ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड ओवर हियर, राइट। अब ये जो हमारा केस है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रिवेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। डिजिटल राइट का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन राइट की बात हो रही है डिजिटल वर्ल्ड में, राइट। कॉम्पिटिशन लॉ और प्रिवेसी की बात करें तो शोइंग दैट डेटा मिसयूज, दिस कैन बी लाइक बोथ, प्रिवेसी वायलेशन भी हो सकता है और उसके बाद में एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज बीइंग सीरियस इन दिस केस। उसके साथ में अब एक ना हिस्ट्री करने समझते हैं कि ये चीज चलती कहाँ से आ रही है। अब मुझे समझ में है कि आप लोगों को याद होगी ये वाली चीज तो देखो 2017 में दिस जजमेंट वाज देयर, राइट। सो प्राइवेसी डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट। तो अगर आप लोगों को याद होगा इंडिया सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर एक सिटीजन के पास में राइट है टू कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ, ठीक है, इंक्लूडिंग हमारा डिजिटल इंफॉर्मेशन भी, ठीक है, क्योंकि एज इट इज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कि इकोनॉमिक वैल्यू है उस चीज की, राइट। तो हमारा जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है वो भी इस एक्ट के अंदर आता है, राइट। नाउ उसके बाद में हमारे पास 2021 का, अगर आपको याद होगा, एक व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी की कंट्रोवर्सी आई थी, है ना। तो व्हाट्सएप ने क्या करा था, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज कर दिया था। तो इससे क्या हुआ था कि लोग काफी घबरा गए थे कि उनका जो पर्सनल डेटा है दैट विल बी शेयर्ड विद द कंपनीज, कि उनके जो मैसेजेस हैं, राइट। फिर उसके बाद एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड वाली चीजें आई थी, बट इट वाज सेड कि कहीं ना कहीं हमारा जो डेटा है दैट विल बी शेयर्ड। ये 2021 की बात कर रही है, राइट। फिर उसके बाद 2022 और 2024 में सीसीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई और फाइन इम्पोज किया गया मेटा पर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई ऑन व्हाट्सएप और उन्होंने बेसिकली बहुत सारे कुछ कुछ रूल्स अनफेयर माने गए और उन्होंने इम्पोज कर दिया फाइन, ताकि यूजर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब 2026 की जो हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट रूलिंग बेसिकली स्ट्रॉन्गली डिफेंडेड यूजर्स प्राइवेसी बाय मेंशनिंग आर्टिकल 21 देयर, राइट। उन्होंने बोला कि यू कैन नॉट इम्पोज सच काइंड्स ऑफ हार्श रेगुलेशंस ऑन पीपल, ठीक है। प्रिवेसी का कंसर्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है that courts are taking digital privacy very seriously and which is very very important, क्योंकि at today's world where we are like covered with gadgets, हम कोई भी काम मैनुअली अब कम ही करते हैं, we are like dependent on these gadgets, हमारा सारा का सारा इंफॉर्मेशन इधर जा रहा है। and if you are sharing these kinds of information then you are sharing everything on the social media, ठीक है, हमारी एडवर्टीजमेंट के लिए और चीजों के लिए, बिजनेस के लिए they can use, right? So it actually holds economic values, right? So whatever Supreme Court has said, it is very true, or this should be protected at any cost. ठीक है? I hope this is understood. Now let's move to the another news.
नो डेथ सेंटेंसेस कंफर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया जस्टिस सिस्टम, इंडिया क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, एक कोर्ट रूम की तरह इमेजिन करो, ठीक है। अब इंडिया में बहुत सीरियस क्राइम हुआ जैसे कि गैंग रेप या फिर कोई मल्टीपल मर्डर, राइट, जो कि डेथ पेनल्टी लीड कर सकता था, राइट। बट ऐसी पनिशमेंट जो थी वो ऑटोमेटिक नहीं थी। There were lots of things, ठीक है, that person basically had to go through ताकि उसे डेथ पेनल्टी मिल सके, राइट। द अथॉरिटी हैव टू गो थ्रू ताकि वो चीज उनके साथ हो सके, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसकी, तो पहले तो वो ट्रायल कोर्ट में जाती थी, उसके बाद में कंफर्म होती थी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में कंफर्म होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाती थी, तब कहीं जाके इन तीनों स्टेजेस के बाद में अग्रीमेंट होता था दैट यस डेथ सेंटेंस विल बी गिवन टू दिस पर्सन, ठीक है। अब अभी जो है हमारे पास में न्यूज है दैट दिस डेथ सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट इज कंसीडर्ड एज रेयरेस्ट टू रेयर केसेस में, ठीक है। मतलब ये चीज है कि अगर कोई डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, राइट, व्हाट दिस डॉक्ट्रिन इज कि इंडिया हैज नॉट अबॉलिश्ड द डेथ पेनल्टी, बट ये है कि अब कोई डेथ सेंटेंस अगर दिया जाएगा तो वो इजीली नहीं दिया जाता है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि डेथ पेनल्टी कैन बी गिवन इफ द केस इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ठीक है। मतलब कोई ऐसा घिनौना सा क्राइम है और ऐसा कोई इंसान है जिसको सुधारने की बात हो ही नहीं सकती, राइट। बेसिकली अब कोई रिफॉर्म नहीं हो सकता उस बंदे में, नो मैटर व्हाट, ओनली इन दैट केस वी कैन गिव डेथ पेनल्टी, ठीक है। अब तो बेसिकली इसके बारे में बात करें तो डेथ पेनल्टी जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होगी। अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस का जैसे कि मैंने मतलब बताया कि अगर एक्सट्रीम ब्रूटल है, शॉकिंग क्राइम है, कोई और पनिशमेंट उस चीज को सुधार ही नहीं सकती, लाइफ इंप्रिजमेंट जैसी चीज भी उस इंसान को नहीं सुधार सकती, देन ओनली डेथ पेनल्टी विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। अब ये रूल आया कहां से? सो दिस रूल बेसिकली केम विद द हिस्ट्री, ठीक है। एक बार पीछे की तरफ चलेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हुआ क्या, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास में ये एक फेमस बच्चन सिंह केस था इन 1980, ही वाज देयर, लाइफ इंप्रिजमेंट उनके पास में, सॉरी डेथ पेनल्टी का केस और लाइफ इंप्रिजमेंट का केस पहले से चल रहा था, एंड देन ही किल्ड हिज फैमिली आल्सो, राइट। तो ये वहां से 1980 से दिस बेसिकली केस, राइट, सो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली सेड समथिंग अबाउट दिस कि उन्होंने बोला कि जो डेथ पेनल्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन वो रेयर केसेस में दी जाएगी। तो कोर्ट को बेसिकली देखना पड़ेगा क्राइम को और क्रिमिनल को भी कि सिचुएशन कैसी थी, सर्कमस्टेंसेस कैसे थे, प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, रिफॉर्म्स के कुछ चांसेस है या नहीं, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी कंसीडर ओवर हियर। एग्जामिनेशन के बाद ही डेथ पेनल्टी का केस आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली सेड कि जजमेंट हैव टू लुक एट द क्राइम आल्सो, कि लाइफ ऑफ द एक्यूज्ड आल्सो, उसका बैकग्राउंड आल्सो, उसके सर्कमस्टेंसेस आल्सो, उसकी सिचुएशन आल्सो, एंड ओनली आफ्टर दैट, ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट, वी हैव टू कंसीडर द क्राइम, ठीक है। अब यहाँ पे दीज फैक्टर्स, राइट, अदर फैक्टर्स आर आल्सो इग्नोर्ड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेथ सेंटेंस की तो ये बहुत ज्यादा अनसेफ और अनफेयर कंसीडर किया जाता था, एंड आल्सो दिस वाज लिंक्ड टू आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में है, राइट। अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे 2023 और 2025 में, तो यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स से यानी कि 2023, 2024 और 2025 से सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट कंफर्म अ सिंगल डेथ सेंटेंस, एक भी डेथ सेंटेंस नहीं है जो कंफर्म किया गया है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है वो रीजन समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड विल बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ट्राई कोर्ट ने तो डेथ सेंटेंस सुना दिया, राइट, और एक्यूज जो है वो एक्विटेड भी है, राइट, बट सुप्रीम कोर्ट के पास में जैसे ये जाता है, राइट, हैज लाइक क्लियरली एक्सप्लेन द रीजंस कि वहां पर उन्हें डेथ पेनल्टी नहीं जाएगी, अगर कोई रिफॉर्म के चांसेस है गिव देम द चांसेस, ठीक है। अब जैसे कि हमेशा डेथ पेनल्टी को माना जाता है इरिवर्सिबल, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी वही चीज बोली है कि डेथ पेनल्टी इरिवर्सिबल है, मतलब अगर किसी ने कोई मिस्टेक कर दी है, राइट, एंड इट कैन नॉट बी करेक्टेड, तो कोर्ट मस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल फॉर दिस ऑल्सो। अगर हमारे पास ऐसा कुछ हुआ कि कोई कन्विक्ट हो चुका है, राइट, एंड नाउ ट्रायल कोर्ट में उसे सजा सुना दी, है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एविडेंसेस में कोई प्रॉब्लम थी, राइट, अथॉरिटीज ने बेसिकली उस चीज को प्रॉपर्ली नहीं दिया, डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, राइट। अगर उस इंसान को डेथ पेनल्टी दे दी जाती है तो चेंजेस तो कुछ हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि डेथ पेनल्टी इज रिवर्सिबल, राइट। सो समवेयर टू टेक एंड अंडरस्टैंड दिस मेजर सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि इसको हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में रखेंगे। अब उसके बाद में उन्होंने मेंशन किया कि ऐसा भी तो होता है कि ट्रायल कोर्ट्स में कभी-कभी गलतियां हो जाती है, जैसे मैंने मेंशन किया, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि डू नॉट कंसीडर साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स, बैकग्राउंड्स आप इग्नोर मत करो, लाइफ सर्कमस्टेंसेस को भी देखो,
फोकस करो पब्लिक एंगर पर भी और ब्रूटैलिटी पर भी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसीजर वीक भी हो सकता है, इसीलिए डेथ पेनल्टी जो है अनसेफ रहेगी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट इज इनफ, राइट। तो कोर्ट को ऐसा लगता है कि सोसाइटी कैन बी प्रोटेक्टेड विदाउट किलिंग द एक्यूज्ड आल्सो, एंड समवेयर दिस इज लाइक बिलीव्ड बाय मेनी थिंकर्स आल्सो कि अगर हम लोग एक गलती, राइट, दैट पर्सन किल्ड समवन, हम एक गलती को छुपाने के लिए वी आर डूइंग द अनदर मिस्टेक आल्सो, है ना, हम उसको भी वही बेसिकली वी आर किलिंग आल्सो। सो दिस अगेन गोज विद द कांसेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, राइट, कि आप एक चीज करने के लिए, आप एक चीज खत्म करने के लिए सोसाइटी में उस चीज को और बढ़ावा दे रहे हो, आप किलिंग को ही बढ़ावा दे रहे हो, राइट। यू वांट people to stop killing and then you are doing the same, so this is not the solution and it should be stopped. So supreme court somewhere mentioned the same thing, same ideologies that these thinkers also think, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। दूसरा ये माना गया कि ट्रायल कोर्ट से भी गलती हो सकती है, और उसके बाद अब अगर ट्रायल कोर्ट से गलती होती है तो उसके बाद में कोई रिफॉर्म्स नहीं हो सकते हैं, और अगर चांसेस है उस इंसान के अंदर चेंजेस लेकर आने के लिए, तो वी शुड एक्चुअली फोकस ऑन दैट। दिस इज व्हाट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इज टेलिंग अस, ठीक है। आई होप दिस न्यूज इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू मूव विद द question over here. So this is the question that you have. You have to write the answer in the comment section. And this is it for today. I'll see you at the same time tomorrow. And for the PDF, you can have access to PDF in the comment section in few hours. Thank you so much. I'll see you tomorrow at the same time.